हाय। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है policybazaar.com में लाइफ इंश्योरेंस की चीफ बिजनेस ऑफिसर संतोष अग्रवाल। मैम, रियली वेलकम टू द शो। Thank you, Anna. Thank you for having me. माय प्लेजर। मैम, दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आप देखें तो महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो औरतों की बहुतायत आबादी अपने देश में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले यही बताइए कि महिलाओं का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, और महिलाएं खुद को इस काबिल कैसे बनाए कि पर्सनल फाइनेंस मैनेज कर सके। See, I think there's no doubt that women need to be financially independent. And ये जरूरी नहीं crucial है हम्म। for that. And for that to happen, I think society में support women को of course अपने आप के लिए stand लेना होगा. And even the men have to come forward to support this whole movement. It's an actual movement, if I were to word it like that. या। And क्यों जरूरी है? Let's discuss that. The reason it's extremely important is because see, it gives you a sense of security. It gives you a sense of equality. It gives you a sense of freedom. It basically means that अगर आप financially independent है, and now with more and more women joining the workforce, being able to earn for yourself, being able या। to fend for yourself, आपको रिलायबल बनाता है, सेल्फ सफिशिएंट बनाता है. और आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप बहुत सारे चॉइसेस मेक कर सकते हो इन रिलेशनशिप्स, इन व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ. या। A lot of that will only come अगर आप financially independent हो. And इसके लिए I think not just women have to really come up and say that this is something that we need to do, but I think society at large will have to support this whole movement in making that happen. बिल्कुल। चूंकि आप खुद एक पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं और वर्कफोर्स में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी को देख रही हैं, तो ये बताइएगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर महिलाओं का अप्रोच कैसा है। So, अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, एक बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होता है हम्म। जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है थ्रू एन इंश्योरेंस कवरेज. एंड अगर आपको अनटाइमली कुछ हो जाए, सडन डिमाइस ड्यूरिंग योर लाइवलीहुड, ड्यूरिंग योर अर्निंग ईयर्स, तो आपकी फैमिली को एक सम अश्योर्ड मिलता है जिससे आपकी फैमिली की, आई वुड से, फाइनेंशियल हम्म। जो सपोर्ट सिस्टम है वो बरकरार रखता है. तो assume that somebody is paying for your salary even when you're not there. बिल्कुल। So वो एक basic form of life insurance है. And you'll be surprised to know that till about, just 1.5 years back, only 7% of the entire industry, uh, the entire industry's term insurance was being bought by women. Today, वाह। because a lot of work has happened in the last 1 year, and we've या। spoken a lot about why women should buy life insurance, especially term insurance, वो number change होके आज 13% है. But हम्म। imagine, in a country like India, only हम्म। 13% of term insurance buyers are women. women, And I would say that, of course, last एक साल में काफी recognition at least है that जरूरत है लोगों को educate करने की. हम्म। women को उतनी ही जरूरत है लाइफ इंश्योरेंस की जितनी की मेन को है. एंड उस एरिया में काफी काम हुआ है. बट ऑफ कोर्स एक 1 year is not enough. It will take a long time for that to change. But at least the movement has started. या। A lot of, and it was, in fact, the whole starting point was a landmark judgment that the Supreme Court had released, where in one of the cases the Supreme Court said that जो women contribute करती है to the household, that carries economic value as well, हम्म। which means that they're indirectly generating income. And that's the point at which, term insurance as a product was then started being available for women as well. So इस तरह बिल्कुल। के काफी, I think, हमें changes लाने पड़ेंगे even in the product that we offer today, so हम्म। that more and more women can be included.
राइटली सर, आई थिंक जैसे आपने बहुत सारी पॉलिसीज और स्कीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट आपके हिसाब से किस तरह की स्कीम्स में एक्चुअली इन्वेस्ट करके महिलाएं जो है वो फिनेंशियली स्टेबिलिटी को अचीव कर सकती हैं? सबसे पहले आई थिंक बिफोर आप वेल्थ क्रिएशन की बात करें जो कि इन्वेस्टमेंट हम्म। माना जाता है, उससे पहले आपको प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। आपके पास एक डिसेंट वैल्यू का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, सो दैट अगर यू फॉल सिक एंड इफ देयर इज सम सीरियस इलनेस, आप आपका इलाज हो पाए इन द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, and you're not worried that how will the treatment happen, and हम्म। there is no burden on the family. So health हम्म। insurance, I think, is a basic product that one should have, followed बिल्कुल। by term insurance, so that your family is protected just in case you are not, something happens to you and you have children and you have your spouse and parents. So term insurance, I think, is the next product that you should look at. So हम्म। protection products आपको सबसे पहले लेने चाहिए, एंड उसके बाद आपको वेल्थ जनरेशन प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। वेल्थ हम्म। क्रिएशन के लिए देखिए, आप डाइवर्सिफाई करिए। आपको कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट से बेहतर आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं थ्रू लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे जो रिटर्न होता है अप टू 5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पर ईयर, तो जो या। रिटर्न होता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। ओके। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग जितना फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, लगभग उतना ही रेट मिलता है। उसके अलावा आपको मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आप यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज ले सकते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम्म। मार्केट में इन्वेस्ट करती है, निवेश करती है। हम्म। और उसमें आपको इक्विटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और 10 साल का होराइजन रखना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड्स इज अ गुड ऑप्शन, एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूलिप प्लान्स आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको रिटायरमेंट के लिए एक फंड जोड़ना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए अगेन आप इंश्योरेंस के थ्रू रिटायरमेंट ले सकते हैं, थ्रू एनुइटी प्लान्स, डेफर्ड एनुइटी प्लान्स, और आप एनपीएस भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिए। और ओके। फोर्थ कैटेगरी है एक इमरजेंसी फंड, जो आपके पास होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 6 months ऑफ योर मंथली सैलरी, जस्ट इन केस कोई इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी दैट कैन हैपन, जॉब लॉस हो जाए। या। सो फॉर अ पीरियड एटलीस्ट ऑफ 6 months यू आर कवर्ड। सो उतना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, एंड यू कैन कीप दैट in a liquid mutual fund scheme, or in a recurring deposit, or in a savings account. बट आई हम्म। थिंक 4 कैटेगरीज में आपको अपना इन्वेस्टमेंट या निवेश की प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक यू, आई थिंक वो बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन है ये। लास्टली एक क्वेश्चन है आपसे कि मैम, देखा जाए तो महिलाओं के जीवन में जो एक माँ बनने का एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा थोड़ा क्या है, काफ़ी स्पेशल होता है, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है। और बच्चे होंगे तो उनके भविष्य की चिंता भी डेफिनेटली एक वरिंग फैक्टर है। तो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए महिलाएं कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती हैं, अगर इसके बारे में आप थोड़ा बता सकें। सी, बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उनके एजुकेशन के लिए एक फंड आपको एक सिक्योर करना चाहिए। और हम्म। वो फंड सिक्योर करने का बहुत अच्छा तरीका इंश्योरेंस होता है, बिकॉज इंश्योरेंस ही एक वो मात्र जरिया है जहां, अगर आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू एजुकेट योरसेल्फ, योर चिल्ड्रन इन, से द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया और या। अब्रॉड, एंड आपने एक एस्टिमेट लगाया है दैट 1 करोड़ का खर्चा होगा, जस्ट 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 पुटिंग फॉरवर्ड अ नंबर। तो अगर आप आज से फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करती हैं और एक मंथली मोड एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करती हैं, तो इंश्योरेंस में एक ऑप्शन है या एक राइडर है जो आप ले सकती हैं। उससे ये होगा कि आप, अगर आपने आज से मंथली किश्त भरना शुरू किया, एंड जस्ट इन केस समथिंग वर टू हैपन टू यू, हम्म। इवन देन वो जो पैसा होगा, अगर आप नहीं दे पाए, इफ समथिंग, इफ दैट हैपेंस और एक्सीडेंट हैपेंस, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ऑन योर बिहाफ। तो जो एसआईपीस आपको पूरी किस्तें भरनी है, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ऑन योर बिहाफ। एंड जो आपने 1 करोड़ का सपना जोड़ा है फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन, दैट गोल विल स्टे इंटैक्ट। एंड ये एक ही तरीका है, वेवर ऑफ प्रीमियम इसको बोला जाता है। और आप एसआईपी मोड पे, हम्म। मंथली मोड पे इन्वेस्ट करके ये एक प्लान अपने आप के लिए ले सकते हैं, जहां पे आप मंथली 10,000 रुपए से स्टार्ट करके और 1 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years
will get secured for your child's future in even if you're not around. So I think एक वो अच्छा तरीका है चाइल्ड हम्म, एजुकेशन के लिए। और इसके अलावा आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यू कैन ऑल्सो ऑफ कोर्स बाय म्यूचुअल फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म हम्म, ड्यूरेशन, जो कि हम्म, इनिशियल ईयर्स में आपको हेल्प करे। बट एक बड़ा फाइनेंशियल गोल कैन बी सिक्योर्ड थ्रू इंश्योरेंस। ओके ओके। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही डिटेल था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। आई एम श्योर कि जितनी भी महिलाएं हो जो हमें अक्रॉस एजेस जो भी हमें सुन रही है वो इस बात को डेफिनेटली मानेंगे कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपने जो भी चीज़ें बताई हैं वो डेफिनेटली लोग फैक्टर इन करेंगे। सो थैंक्स फॉर दैट। आप थी policybazaar.com में लाइफ इंश्योरेंस की चीफ बिजनेस ऑफिसर संतोष अग्रवाल। सो इंटरनेशनल वुमेंस डे पर महिलाओं के पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों पर आज तक रेडियो से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much and happy Women's Day to all the listeners. Thank you. थैंक यू।